Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing some basic concept of chemistry, and basic concept means elementary, very basic entities, those which will be useful for discussion of chemistry. So that I am going to discuss here. लास्ट क्लास में पिछली क्लास में हमने बात किया था कि पिछली क्लास में ये बात किया था हमने कि तरह तरह के यूनिट क्या होते हैं और उस यूनिट को मेजर करना है. तो मेजरमेंट ऑफ दैट यूनिट वी नीड टू डिस्कस टुडे. आज हम उन सब यूनिट के बारे में बात करते हैं और उनकी मेजरमेंट कैसे की जाती है उनकी भी बात करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं मास, जो हमने बताया था सिस्टम इंटरनेशनल यानी ऐसा यूनिट, उसमें सबसे पहले हमने बात की थी मास की. तो मास को कैसे मेजर करते हैं और मास है क्या. सबसे पहले समझते हैं कि मास क्या है. सो व्हाट इज मास? मास ऑफ ए बॉडी, mass of a body is the quantity of matter contained in the body. Mass of a body is the quantity of matter contained in the body. So mass is something of which is contained. तो ऐसा अगर एक बॉडी हो कोई भी, तो उसके अंदर जितने भी मैटर क्या होता है जी, उसके बारे में हमने बात किया था कि मैटर वो होता है जो कि क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसमें कुछ मास हो. तो मास और मैटर कोरिलेटेड है. मैटर बिना मास के डिफाइन नहीं हो सकता और मास जो है वो क्या है, वो मैटर की क्वांटिटी है. तो इसका मतलब है दोनों इंटर रिलेटेड वर्ड है. मैटर को जब हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास, और मास को जब डिफाइन कर रहे हैं तब भी यही कह रहे हैं कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी. सो बोथ आर इंटर रिलेटेड. Mass can be calculated. The unit of mass we had already discussed, that SI unit of mass is what? Kilogram. The SI unit of mass is kilogram, right? Is kilogram. For measuring the different amount of mass, that is denoted by kg. For measuring the different amount of mass, we can use the different smaller unit and bigger unit as well. For example, a smaller unit than mass is gram. A small in CGS system, we can measure mass in terms of gram. So a small unit of mass in CGS system is gram. So what is the relation between them? The relation is 1 kilogram is equal to 1000 gram, right? So 1 kilogram is 1000 gram. That is 10 to the power 3. That can be also written as 10 to the power 3 gram. So other units can be also defined similarly. Say 1 kilogram is equal to 1000 gram. So 10 to the power 3 gram. Similarly, 1 hectogram can be written as 10 to the power 2 gram. 1 decagram can be written as 10 gram, right? And 1 decigram can be written as 10 to the power minus 1 gram. 1 centigram is equal to what? 1 centigram is equal to, similarly, 1 centigram, that can be written as 10 to the power minus 2 gram, right? 1 milligram can be written as 10 to the power minus 3 gram. 1 microgram is equal to 10 to the power minus 6 gram. 1 nanogram, that is nano is the unit. 1 nanogram
is 10 to the power minus 9 gram. Similarly, these are the counting of chemistry. So we can use this nanogram. Then what is that? Thereafter, we can use 1 pictogram. 1 pictogram is equal to 10 to the power minus 12 gram. 1 phamatogram is equal to 10 to the power minus 15 gram, like that. So these are some countings which can be used for measuring the different quantity. Similarly, another way, 10 to the power 6 is kilogram. Then other units are there, like 1 attogram, that is called 10 to the power minus 18 gram. 1 jeptogram is equal to 10 to the power minus 21 gram. And 1 yoctogram can be written as 10 to the power minus 24 gram. So all these units are like this. Similarly, these are for measuring a smallest unit. These are the used for measuring a smaller unit, smaller units of mass can be measured by using this. Similarly, bigger mass, since we have learned that 1 kg is equal to 10 to the power 3 gram. 1 mega kilogram, or 1 megagram, you say megagram, that is 10 to the power 6 gram. 1 megagram is 10 to the power 6 gram. 1 gigagram is equal to 10 to the power 9 gram. 1 teragram is equal to 10 to the power 12 gram. 1 petagram, that is 10 to the power 15 gram. So like this. Similarly, some other units can be also measured, like 1 hexagram is equal to 10 to the power 18 gram, right? Similarly, 1 zettagram is equal to 10 to the power 21 gram. And 1 yotagram, that is called 10 to the power 24 gram. So minus 24 to 10 to the power plus 24, these are the huge range of measurement of all these masses, and that all can be measured by using analytical balance in the laboratory. The huge mass cannot be used measured by this, but a small mass can be used by using this analytical balance. This is called analytical balance. So mass can be measured accurately by using analytical balance. Mass of a body can be used, measured accurately by using analytical balance. Right? So this is a mass of this can be measured by using this analytical balance, and they have symbol as well. So all these has basic symbols. You can use it for different here. Mass of kilogram can be measured in kg. Symbol is K, right? Now hectogram, H is the symbol. Here decagram, DA is the symbol. Here decigram, that is D is the symbol. Deci. Centi, C is the symbol, and therefore milligram, a small m is the symbol. Microgram, capital M is symbol. Nanogram, a small n is symbol. Centigram, C is a symbol. So that is basically represented by symbols. All these are represented by symbols. So pictogram is the P symbol. Phamatogram, F is the symbol, like this. So all these have a small symbols. Whenever this is measured in terms of attogram, that is A, jeptogram, G,
Yotogram, Y, these are the symbols, you know. Micro can be used by this symbol as well. So microgram can be used by this symbol, let is mu. Mu can be used for microgram. Mu is the symbol. And here, what is this? Next is megagram. So that can be used as capital M. Gigagram, that is G. Teragram, that is T. Petagram, that is P. Symbol is P. Similarly, hexagram, symbol is E. Zetagram, symbol is Z. Yotagram, that is capital Y, is the symbol. So all these can be measured by the different units, you know. And mass of a body can be measured by using analytical balance accurately. So we can measure this, right? Mass of the body. Now modern this analytical balance which has been shown in the figure here, जैसा कि हमने यहाँ फिगर में आपको दिखाया है, ये एक बीम होता है और ये जो राइडर कैरियर नॉब होती है जिससे इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है. ये पैन दो होते हैं, ये भी पैन है एक और ये भी एक पैन है. तो ये दोनों पैन होते हैं जिसपे एक पे वेट और दूसरे पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, सब्सटेंस. तो सब्सटेंस रख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे वेट रख सकते हैं. तो इस तरह से ये पैन स्क्रू पैन है जो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है. और ये जो पॉइंटर स्केल होता है, ये पॉइंटर स्केल जो इंडिकेट करता है उसके हिसाब से, अगर इसको पॉइंट को इंडिकेट करता है तो उसके हिसाब से मास को बैलेंस मानते हैं और एक्यूरेट मानते हैं. तो इस तरीके से हमने कहा कि मास ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग एक्यूरेटली बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस. यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस. Using analytical balance, right? So this is what now अभी आप लोग देख रहे होंगे कि तरह तरह के शायद थोड़ा डिजिटल इसका फॉर्म जो है वो थोड़ा चेंज हो गया और इस तरह के हो गए ये एनालिटिकल बैलेंस जो अब पूरी तरह से ग्लास में पैक होता है और यहाँ पे ये डिजिटल हो गया, डिजिटल फॉर्म हो गया, डिस्प्ले होती है. आप किसी ज्वेलर के शॉप पे देखे होंगे कि ऐसा चीज है, इसके अंदर आप ज्वेलरी रख देते हैं, उसको बंद कर देते हैं और यहाँ से आपको सामने दिखता है कि क्या है. पावर बटन ऑन करते ही ये दिखता है. लेवल एडजस्टमेंट करने के लिए दो स्क्रू होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर. ये जो दोनों स्क्रू होते हैं ये लेवल को एडजस्ट करने के लिए होता है. ये यहाँ पे नीचे इसके लेयर को ये स्क्रू बटन को टैप को दबाने से ये पता चलता है कि बैलेंस है कि नहीं. यहाँ पे डिस्प्ले आती है, यहाँ पे आप रख सकते हैं. लेवल इंडिकेटर यहाँ पे दिखाएगा कि कैसा है, ये बराबर है, बैलेंस है कि नहीं है, कोई तिरछा तो नहीं है. और ये ड्राफ्ट शिफ्ट होती है जो कि पूरी तरह से इसको डोर हैंडल, डोर पैन, ये सारी चीजें हैं जो कि पूरी तरह से इसको दिखाता है. ये डोर को बंद कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सामान रख देते हैं. इधर से यहाँ पे डोर को स्लाइडर होता है, इसे बंद कर देते हैं ताकि एयर प्रेशर कोई ना हो और आप चीजों को आसानी से बैलेंस कर पाए और मेजर कर पाए. So all these can happen, you know, by using the balance. Now अब एक दूसरी बात आती है कि तो ये मास है तो वेट क्या होता है? What is weight? तो let me explain this. Weight क्या होता है? तो weight of a body is the force by which it attracted towards gravity, by which it attracted by gravity means force exerted by gravity is called weight. Weight of a body is the force exerted by gravity on it. So SI unit of weight is Newton because it is a force, so therefore SI unit of weight is Newton. While SI unit of mass is kg. SI unit of mass is kg. SI unit of mass पहले ही लिखा है. SI unit of mass is nothing else, kg, right? So kg it is a scalar quantity. kg is a scalar, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा. और वेट जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है. तो वेट ऑफ द बॉडी कैन वेरी. वेट ऑफ द बॉडी कैन वेरी place to place.
place to place due to variation of value of acceleration due to gravity, due to variation of acceleration due to gravity, due to variation in the value of g, while mass of the body remains constant. Mass of the body remains constant. तो आपको ये वेट और मास में फर्क समझ में आ गया। वेट बदलता रहता है क्योंकि जगह जगह पे जी की वैल्यू बदलती रहती है, और जी की वैल्यू जो पोल की तरफ जाने पे बढ़ता जाता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है। इस तरह से वेट बदल सकता है। वेट यहाँ पे कुछ अलग होगा, मून पे कुछ अलग होगा। मून पे जी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है अर्थ के रेस्पेक्ट में, लगभग 1/4। सो वहां पे अलग अलग वैल्यू होगी, राइट ना। और अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होगी जी की, और इस तरह से वेट जो होता है वो कम होता जाएगा, लेकिन मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कहीं भी ले जाओ, यहाँ पे वेट करो या मून पे वेट करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी is the space occupied by the body। जितना स्पेस ऑक्युपाइड किया वो उसका क्या है? वॉल्यूम। तो जितना स्पेस ऑक्युपाई किया, अब स्पेस को कैसे मेजर करें? तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए तरह तरह की यूनिट है, और बेसिकली जो वॉल्यूम हम मेजर करते हैं वो मिलीलीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। यानी ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब, जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये 1 यूनिट लेंथ है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर हाइट। तो ये जो होता है पूरा वो होता है, ये जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। कोई ऐसी हमारे पास पॉट हो जो 1 सेंटीमीटर लेंथ हो, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर हाई, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। सो रिमेम्बर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब is equal to what? 1000 ml, of course। 1000 सेंटीमीटर क्यूब is equal to 1000 ml होता है, right? 1000 ml। 1000 सेंटीमीटर क्यूब is equal to 1000, on 1 meter cube is equal to 1000 liter, that is 1000 liter। 1 सेंटीमीटर क्यूब is equal to 1000 लीटर होता है। यानी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट का कोई हो तो उसमें हम कहेंगे कि क्या हुआ? 1000। आपके छत पे अगर ऐसी कोई टैंकी है जिसकी लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर हो, तो इसका मतलब है कि उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, राइट ना। तो 1000 मिलीलीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 लीटर भी कह सकते हैं। तो 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, and 1 meter cube is equal to 1000 liter, right ना, 1000 लीटर। तो ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए, और ये जो स्केल है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Now the question is how to measure the volume। The volume of liquids can be measured in laboratory by using graduated cylinder, burette,
burette, pipette, and volumetric flask, right? So these are used basically for measuring this. Volumetric flask basically used when this, let us see the how it is and how they are. So whenever this is a burette, and this is a pipette, you can see this here, this is a burette. When things are to be dropped, one solution in one solution, another solution is to be dropped by drop one by one, droplets in form of droplets. एक एक बूंद गिराना हो तो आप ड्रॉप के रूप में गिराना हो तो ब्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं। ये पीपेट जो है वन टाइम 25 ml किसी सब्सटेंस को मिक्स करना हो तो आप इससे 25 ml मेजर कर सकते हैं, उसके मल्टीपल में मेजर कर सकते हैं और इसे डाल सकते हैं। ये है जब कोई सब्सटेंस आपको मेजर करना हो, रेदर देन 25 ml, अगर 20 ml 30 ml 40 ml लाइक मेजर करके डालना हो तो आप इससे डाल सकते हैं, इसमें मेजर कर सकते हैं और इसको डाल सकते हैं। अगर आपको 60 ml डालना है तो इससे डाल सकते हैं। ये है, मान लीजिए 1 लीटर कोई सॉल्यूशन बनाना है और आप उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिक्स कर देते हैं। और अगर हमें बनाना है 1 लीटर तो आप इसमें डाल के उसमें हिला के और उसको मिक्स करके और आप बना सकते हैं। तो ये सब अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये जो चार तरह तरह के डिफरेंट हमने बताए, एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर, दूसरा है ब्यूरेट ग्रेजुएटेड सिलेंडर, और दूसरा है ब्यूरेट, तीसरा है ब्यूरेट, और तीसरा है पीपेट, और चौथा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो इन सब के बारे में थोड़ी सी एक एक लाइन समझ लेते हैं। ये कब कब इस्तेमाल करते हैं? ये जब इस्तेमाल तब किया जाता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जब हमें a given quantity can be measured, given quantity can be measured by using this measured. Burette क्या करता है? When solution are to be mixed slowly, when solution are to mix slowly in and measure in terms of droplets. And measure in terms of droplet, measured in terms of drop, right? And pipette, a given quantity can be here in multiple of 25 ml can be measured easily, right ना, easily. And ये तब इस्तेमाल होता है ये वॉल्यूमेट्रिक, जब when given quantity of solution is to be prepared, when a given quantity of solution is to be prepared, given quantity of solution is to be prepared, तो आप ये करते हैं, ठीक है। तो सम जो है ये ऑपरेटर्स है, sum of the operators which is used, these are the sum of operators, not all, sum of operators or sum of the useful equipments to measure the volume, sum of useful equipments to measure volume in laboratory. So these are some of the useful equipments and that can be used to measure the volume in laboratory. Now the third thing is
Next thing is temperature. Temperature. So temperature, what is this temperature? Temperature, as you know, the degree of hotness. We have already defined it. Temperature is the degree of hotness. Temperature is temperature of the body is degree of hotness. Degree of hotness. Right? So temperature can be measured in three different scales. That is degree Celsius, Kelvin and Fahrenheit. So a scale of temperature. A scale of temperature. What is that? This can be measured in three different units. That is called degree Celsius, degree centigrade, degree centigrade, and degree Fahrenheit. Fahrenheit. Let me write it clearly. Fahrenheit. And then Kelvin. So ये तीन तरह से हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को. अभी क्या है और क्यों है, ये स्टैंडर्ड पैरामीटर इनके क्या है और क्यों लेते हैं. तो सबसे पहले ये समझे कि जो वाटर का जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, यही स्टैंडर्ड पैरामीटर लिया जाता है स्केल ऑफ टेम्परेचर का. इसमें वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अगर मैं केल्विन की डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं, तो डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री पे वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इन दोनों के बीच के रेंज के टेम्परेचर को 0 से 100 के बीच को ग्रेजुएट किया गया, 100 भागों में बांटा गया और एक को कहा गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड. इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि फ़ारेनहाइट का, तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो था 32 और जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था 212. राइट. तो इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो है, कितने का डिफरेंस हो गया, 180 का. तो 180 पे इसको डिवाइड किया गया, 180 डिग्री में सेगमेंट में डिवाइड किया गया और उस एक सेगमेंट को कहा गया 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. केल्विन की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है इसका, वो होता है 273.1 और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 373.15. ठीक है. तो इसको भी 100 में ब्रेक किया गया. तो इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं, ये वाटर के पैरामीटर से नॉर्मल एटमॉस्फेयर में वाटर का ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो इस तरीके से ये फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके और वाटर को मेजर करने के लिए सिलेक्ट किया गया. और एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये जो है, आप देखिए यहाँ पे, तो आपको लग रहा है कि वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग एट सी लेवल, ये है 30 डिग्री सेल्सियस में, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ये है किसका, मतलब डिग्री सेल्सियस का. और यहाँ पे इसके बीच के जो जगह थी, बीच के जो रेंज ऑफ टेम्परेचर था, उसको 100 यूनिट में डिवाइड किया गया और 1 को कहा गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड. इसी तरह से फ़ारेनहाइट में क्या किया गया कि यहाँ पे इसकी जो बेसिक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट पे ये जो क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट था, और 212 पे जो था वो बॉइलिंग पॉइंट है एट सी लेवल. तो इसका मतलब है कि डिफरेंस जो हो गया 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 180. सो 180 को फिर से ब्रेक किया गया 180 सेगमेंट में, और एक सेगमेंट को कहा गया 1 फ़ारेनहाइट. केल्विन की बात करें तो 273.15 पे माइनस के साथ, ये माइनस है, इसमें हम कहेंगे कि क्या होता है, 273.15 केल्विन पे ये जो है वो क्या होता है, जो है फ्रीज होता है, और 317.15 पे क्या होता है, बॉयल होता है. तो इस तरीके से इनकी टेम्परेचर अलग अलग की गई और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग बातें हुई. इनमें कुछ रिलेशनशिप भी हो सकती है क्या, जो इंसान है, कोई आम आदमी है, उसका बॉडी टेम्परेचर आप कहें तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, और जब हम बुखार वगैरह
किसी को फीवर होती है तो हम मेजर करते हैं तो उसकी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों में ये रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, कोई पूछे ये कैसे पता चलेगा हमें, और तो ये पता करने के लिए हम एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं इनके बीच में, और उस रिलेशनशिप से हम समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो चलिए वो देखते हैं क्या रिलेशनशिप हो सकती है। लेकिन इससे पहले कुछ बताऊं कि जो और कुछ हमारी जो जनरल लाइफ में बॉडी टेम्परेचर या के अलावा और भी जो चीजें हैं वो कितने कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है उसकी जो टेम्परेचर होती है वो लगभग होती है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग वाटर आप समझ गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मेल्ट होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस जमा भी होता है। दोनों चीजें इसलिए उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर वाटर का एग्जिस्ट करता है। सरफेस ऑफ सन का लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। 5000 6000 तक भी होता है डिग्री सेंटीग्रेड। और जो क्रोड होता है ये, इसका टेम्परेचर पता है कितना होता है 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बंसन बर्नर जो होता है उसका टेम्परेचर जो यहाँ पे फ्लो है, ये फ्लेम जो है इसका टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इंसान के बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजर जहाँ पे आइसक्रीम जमता है उसकी टेम्परेचर होती है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी जाकर के वो आइसक्रीम इतनी हार्ड और जो होता है सॉलिड होता है। तो ये सब एक कॉमन चीजें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा तो हमने ये देखा कि 100 डिग्री जो सेल्सियस है वो 180 फ़ारेनहाइट डिग्री के बराबर है। फ़ारेनहाइट डिग्री के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 20 से, तो 5 डिग्री सेल्सियस जो है 9 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट है। लेकिन डिग्री और सेल्सियस को अगर डिग्री में हमें बदलना है तो हम क्या रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड सेल्सियस इज रिलेशन बिटवीन degree Celsius and Fahrenheit is given by degree Celsius and Fahrenheit degree. Fahrenheit is what? Degree Celsius and degree Fahrenheit is given by like this. C is equal to we can write here that is 5 by 9 F minus 32। और Fahrenheit में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू और एफ इज इक्वल टू सिंपली यू कैन राइट 9 by 5। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सी, और एफ -32 इधर आ जाएगा, 32 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये तरीका है हमारा एक दूसरे में कन्वर्ट करने का। या तो इसको आप याद रखें या इसको याद रखें। यानी जब फ़ारेनहाइट में दिया हो और डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना हो तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको दिया हो कि डिग्री सेल्सियस में दिया हो, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना हो तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है, डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस दिया है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। इफ जैसे क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लूं कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, व्हाट इज टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, सो दैट वी वांट टू कैलकुलेट। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करेंगे, क्या रखना चाहिए हमें। इस फॉर्मूला को लगाने से हमें ये मिलेगा F इज इक्वल टू 9 by 5। 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 45 यहाँ रख दिया प्लस 32। ये 5 से 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, 9 9 जाए 81 प्लस 32। ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट में 2 + 1 3 और 8 + 3 11, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया ये टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये डिजिटल थर्मामीटर सब है। अब पहले जो तो मरकरी थर्मामीटर चलता था, अब डिजिटल थर्मामीटर चलता है। ये डिफरेंट टेम्परेचर यहाँ दिखा हुआ है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये पता करें। चलिए एक बार फिर से, हमें पता तो है वैसे, लेकिन एक बार दोबारा पता करते हैं कि इफ टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस is the temperature of body
temperature of body, then what is the temperature in Fahrenheit? What is the temperature in Fahrenheit, in degree Fahrenheit? तो ऐसे अगर हमें निकालना है तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला? जो अभी हमने सीखा है, Fahrenheit इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो यहाँ लगा देंगे 9/5 और C का मतलब 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो व्हाट विल हैपन? अगर इसको हम कैलकुलेट करें, 9 7 जा 63, 6 कैरी 6, 9 3 जा 27 एंड 6 34। तो 6 9 3 जा 26, 27 plus 6 33। So 333 divided by 5 plus 32, that can be written as 666, 66.6 degree plus 32, and what is this? 98.6 degree Fahrenheit। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या इतना फ़ारेनहाइट होता है। आपको कन्वर्ट करके हमने दिखाया। इस तरीके से एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल के जरिए आप समझ सकते हैं। जो दूसरा स्केल ऑफ टेम्परेचर होता है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि इस टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करना है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। इफ सम टेम्परेचर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड यू वांट टू फाइंड इन टेम्परेचर केल्विन, सो टेम्परेचर इन केल्विन can be calculated like what? Temperature in degree Celsius, temperature in degree Celsius plus 273.15, right? ये होता है 16 basically, 273.15 या 16। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर देते हैं। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस सिंपली डिग्री सेल्सियस एंड प्लस 273.15 होता है, लेकिन 15 न कैलकुलेट करके हम सीधे 273 कैलकुलेट कर लेते हैं और इससे हमारी बात बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एग्जाम्पल के रूप में हम ये कहें कि हमारी टेम्परेचर कितनी है, 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 36 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट इन केल्विन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 30 प्लस 273, दैट इज व्हाट, ये होगा 303 केल्विन। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 303 केल्विन होता है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये एक पैरामीटर हो गया जिसको आप समझ गए। मेरे ख्याल से टेम्परेचर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता चल गया। तो टेम्परेचर कैलकुलेट हो गया, वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया, डेंसिटी कैलकुलेट हो गया, सब कुछ ये बेसिक जो चीज है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे लेबोरेटरी में वो आपको पता चल गया। Now, one of the important fact that I would like to tell you is that temperature in degree Celsius can be negative. Important. Temperature in degree Celsius, temperature less than 0 degree Celsius centigrade is possible in Celsius scale. But negative temperature is not possible in Kelvin scale. So negative temperature is usually cannot be measured in Kelvin scale. So Kelvin scale negative temperature cannot be measured in Kelvin scale. So ये दिमाग में होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो थी वो किसकी थी, टेम्परेचर की, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं बॉडी का, और अलग अलग जो हमें हो टेम्परेचर का
तो उसको मेजर करने का क्या स्केल होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल, और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो इस तरह से आई होप आपको ये बेसिक जो टर्म्स हैं ये सारी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, और इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, और इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, ये क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, अगली क्लास में बात करते हैं। आप इतना तब तक पढ़ के आएँ और खूब मजे करें, एंजॉय करें, और इसी तरह से चैनल को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।